بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، فرعون کیسے غرق ہوا، فرعون کی کیسے موت ہوئی، فرعون کا خواب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی، چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ 19واں فرعون تھا۔ اس کا نام منفتح بن رمسس دوم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشان کہ ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس صندوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی کی۔ جب یہ صندوق طیتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کی گھرانے کی عورتوں میں سے ایک عورت نے اس صندوق کو دیکھا اور اس صندوق کو دیکھ کر باہر نکلوایا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو وہ خوش ہوئیں اور اس بچے کو لے کر اپنے محل میں چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ فرعون کے کوئی بھی اولاد نہ تھی، اور جب اس کی بیوی نے خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گئیں۔ جب وہ خوش ہو رہی تھی اس بچے کو دیکھ کر تو اس اثنا میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں، اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رسان بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہوگا۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بگار میں لے کر تنگ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کے ایک ایسا تمانچہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ نے ایک طرف تو اس قبطی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جھگڑا مول لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا، موسیٰ کل تم نے ایک مصری کو مارا، اسی طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ چلایا، موسیٰ کل تم نے ایک مصری کو مارا، اسی طرح آج مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا تھا، سارے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے لیے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعہ کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے
اور मंजिलें तय करते हुए मदीन के शहर जा पहुँचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब एक कुएँ पर पहुँचे तो देखा कि कुएँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने-अपने रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे 2 लड़कियाँ अपनी बकरियाँ लिए खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लड़कियों से पूछा कि तुम क्यों अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाती? उन्होंने कहा, हमारा बाप ज़ईफ़ है और हम कमज़ोर औरतें। यहाँ जो ताकतवर है वो सबसे पहले अपने रेवड़ को पानी पिलाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े वजिया खुश शक्ल और जवान थे। आप भीड़ को चीते हुए आगे बढ़े और इस जस्से को जिसको 3-4 आदमी खींचते थे, अकेले ही खींचकर पानी निकाला और इन लड़कियों के रेवड़ को पिला दिया। वो लड़कियां तो चली गईं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे लेट गए। जब वो लड़कियां घर पहुंची तो उनका बूढ़ा बाप बहुत हैरान हुआ और पूछा कि आज तुम पहले ही क्यों आ गई? उन्होंने कहा कि एक परदेसी नौजवान आ गया था जिसने हमारी बकरियों को पहले ही पानी पिला दिया था। बूढ़े बाप ने कहा कि ये एहसान फरामोशी होगी कि हम अपने मोहसिन के साथ कोई अच्छा सलूक ना करें। जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुला लाओ ताकि हम इसकी कुछ खिदमत कर सकें। चनाचा एक लड़की गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ ले आई। इनके बाप ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया और इस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाक़या सुना दिया। इस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी अपने बुज़ुर्ग बाप से कहा कि बाबा जान, बेहतर होगा कि इस नौजवान को मुलाज़म रख लिया जाए। मुलाज़म वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह गए कि अगर तुम 8 साल मेरी बकरियाँ चराओ तो अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूँगा, और अगर तुम 2 साल और बकरियाँ चुराओ तो यही लड़की का हक महर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल किया, फरमाया मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए, इन दोनों में से जो मुद्दत मैं चाहूँ इसको पूरा कर दूँ। चनाचा मुकर्ररा मुद्दत तक बकरियाँ चराने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थी। रात हो गई और आप रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीक थी। आपको आँख की तलाश हुई। इधर-उधर देखा, सामने कोहे सीना पर चमकता हुआ शोला नज़र आया। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहाँ से आग ले आऊँ और हो सकता है वहाँ कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें सीधा रास्ता बता सके। आप चले जा रहे थे और आग दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर चलने के बाद भी आग से दूर रहे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे और करीब था कि वापस हो जाएँ कि आवाज़ आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपना जूता उतार दे, ये तो वाक़ई मुक़द्दस वादी है। मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया, पर जो कुछ हुक्म दूँ उसको गौर से सुन। सच है खुदा के दीन का, मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएँ, पैगम्बरी मिल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये आवाज़ सुनकर चौंके और अपने जूते उतार दिए। खुशी और मसरत से हैरान खड़े थे कि आवाज़ आई, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि ये मेरा सोंटा है, इसमें मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसकी टेक लगाकर आराम करता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस लाठी को ज़मीन पर डाल दो। जो ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर फेंकी, वो एक खौफनाक अजदहा बनकर दौड़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर कर भागने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा खौफ ना खाओ, इसको पकड़ लो, हम इसको फिर इसी हालत में लौटा देंगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अजदहा को पकड़ा तो वो फिर लाठी थी और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने हाथ को गिरबान के अंदर मस करके बाहर निकालिए, वो रोशन हो जाएगा और ये एक बीमारी ना होगी बल्कि तेरे अल्लाह की निशानियाँ हैं। हमारी इन निशानियों को लेकर फ़िरौन के पास जाओ और इसको और इसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। इसने बहुत सरकशी और नाफ़रमानी इख्तियार कर रखी है। वो बनी इसराइली पर इंतहाई ज़ुल्म कर रहा है। इनको इस ग़ुलामी और ज़िल्लत से निजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को साथ लेकर फ़िरौन के दरबार गए और फ़िरौन से कहा कि खुदा ने मुझे अपना पैगम्बर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। हम तुमसे 2 बातें कहते हैं, एक तो खुदा वाहिद पर ईमान ले आओ, दूसरे बनी इसराइल पर ज़ुल्म और सितम से बाज़ और उनको ग़ुलामी से निजात दो। फ़िरौन से काफ़ी बातें हुईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्यारे मोहब्बत से फ़िरौन को समझाने की बहुत कोशिश की और जब इससे कोई जवाब ना आया तो दरबारियों से कहने लगा कि ये कोई पागल मालूम होता है और कज बहशी करने लगा और अपने वज़ीर बामान से कहने लगा कि ऊंची इमारत बनाओ जिस पर चढ़कर मैं मूसा के खुदा को दे सकूं, और मैं तो इसको झूठा समझता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी सदाकत में तेरे पास ज़ाहिर निशान लाया हूँ। फ़िरौन ने कहा, अगर तेरे पास कोई निशान है तो हमें भी दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंक दिया। वो एक खौफनाक अजदहा बन गया। फिर अपना हाथ गिरबान के अंदर ले गए। जब निकाला तो वो एक रोन सितारे की तरह चमक रहा था। ये देखकर फ़िरौन के दरबारी चिल्ला उठे कि ये तो कोई बड़ा जादूगर है। चनाचा ये फ़ैसला हुआ कि अब तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को जाने दी जाए और कुछ दिन अपनी सुल्तनत के बड़े-बड़े जादूगरों को इकट्ठा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला कराया जाए। मुकाबले से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अवाम को मुखातब करते हुए फ़रमाया, अल्लाह पर झूठी तहमत ना लगाओ। ऐसा ना हो कि खुदा का अज़ाब तुमको दुनिया से निस्तो नाबूद कर दे।
जादूगरों ने आगे बढ़कर यही कहा कि इन बातों को जाने दो, अब ज़रा दो दो हाथ हो जाएं। अब ये बताओ कि पहल तुम करोगे या हम करें? आपने देखा कि अब पर कोई बात असर नहीं करती तो आपने फरमाया कि पहल तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। अब इन जादूगरों ने अपनी रस्सियां बांध और लाठियां ज़मीन पर डाल दी जो अजदहा बनकर ज़मीन पर ढोने लगे। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ घबरा गए, मगर इसी वक्त खुदा का हुक्म हुआ, मूसा खौफ ना खाओ, हमारा वादा है तुम गालिब रहोगे, अपनी लाठी को ज़मीन पर डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपना असा ज़मीन पर फेंक दिया और वह एक खौफनाक अजदहा बन गया जिसने तमाम जादू के ज़ोर से बने हुए नुमाइशी सांपों को निगल लिया। जादूगर ये देखकर सख्त हैरान हुए और पुकार उठे कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये अमल जादू नहीं बल्कि खुदा का मोजिज़ा है, और वो फ़ौरन सजदा में गिर पड़े और ऐलान किया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के खुदा पर ईमान ले आए हैं। जादूगरों ने कहा कि अब सच्चाई हमारे सामने आ गई है, तो जो कुछ करना चाहता है कर गुज़र, हम एक खुदा पर ईमान ला चुके हैं, वो हमारी ख़ताएँ बख्श दे। ये देखकर इस्राएली नौजवानों की एक जमात भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, लेकिन वो भी फ़िरौन के कहर व गज़ब से डरते थे, इसलिए खुलकर ऐलान ना कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम वाक़ई अल्लाह ताला पर ईमान ले आए हो और इसके फर्माबरदार बनना चाहते हो तो फ़िरौन से हरगिज़ ना डरो और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके दरबारियों के मंसूबों का इल्म हुआ तो आपने बनी इसराइल के लोगों से कहा, मूसा हम तो पहले ही मुसीबतों में फंसे हुए थे, तेरे आने से कुछ उम्मीद बंधी थी, मगर तेरे आने के बाद तो और भी मुसीबत आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको तसल्ली दी और कहा कि घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम ज़रूर कामयाब रहोगे और तुम्हारा दुश्मन हिलाक होगा। अब फ़िरौन और इसके दरबारियों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के मशवरे होने लगे। इनमें से एक मर्द मोमिन भी था जो ईमान को छुपाए हुए था। इसने कहा, तुम एक ऐसे शख्स को मानना चाहते हो जो सच्ची बात कहता है और तुम्हारे पास अपनी सच्चाई में बेहतरीन निशानियाँ लाया है। अगर वो झूठा है तो तुम्हें इससे कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा, अगर वो सच्चा है तो फिर इसके वादों से डरो जो खुदा की जानिब से सुनाता है। लेकिन फ़िरौन और इसके सरदारों पर कोई असर ना हुआ, बल्कि उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से पहले इससे निपट लेना चाहिए। आखिर जब मिस्रियों को सरकशी और नाफरमानी हद को पहुंच गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से फ़िरौन को मसला कर दिया कि तुम पर अज़ाब इलाही नाजिल होने वाला है। अब ये सूरत हुई कि जब अज़ाब की सूरत पैदा हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अगर ये अज़ाब टल जाए तो हम तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आए, और फिर अज़ाब टल जाता। इस तरह कई बार हुआ, लेकिन जब अज़ाब रफ़ा हो जाता तो ये लोग फिर मुनकर हो जाते। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की सरजमीन पर ले जाओ। चनाचा आप रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल गए। इधर फ़िरौन को भी इत्तला मिली, इसने एक ज़बरदस्त फ़ौज के साथ इनका ताक़ब किया। वो पानी के किनारे पर पहुंचे थे कि मिस्री फ़ौजें आ गईं, जिन्हें देखकर बनी इसराइल बहुत घबराए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह ताला का वादा सच्चा होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। चनाचा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहीरा कलज़म के पानी पर अपनी लाठी मारी तो इसमें से रास्ता बन गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आराम से बहीरा कलज़म से पार हो गए। ये देखकर फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि तुम भी इस रास्ते से बहीरा कलज़म को पार कर जाओ। लेकिन जब फ़िरौन और इसकी सारी फ़ौज दरमियान में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। जब फ़िरौन गर्क होने लगा तो इसने पुकारा कि मैं मूसा के खुदा के ऊपर ईमान लाता हूँ, लेकिन ये इबादत वक्त था और मिस्री ऐसे कई वादे पहले कर चुके थे। फ़िरौन की पुकार पर अल्लाह ने फरमाया कि आज के दिन हम तेरे जिस्म को इन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं निजात देंगे कि वह इबरत का निशान बने। चनाचा हज़ारों सालों के बाद इसकी लाश दस्तयाब हुई है और अब मिस्र के अजायब खाना में मौजूद है, और इसकी लाश आने वाली तमाम नस्लों के लिए इबरत का निशान बनकर रह गई है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करें जो कि अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।